Good morning, students. Today we will see chapter 2, engineering cost and estimation. Okay, so here in this chapter we will see what are the fixed cost, variable cost, marginal cost, average cost, sunk cost, etc. Okay, so before starting this chapter, first what is cost? So whenever in any organization or any company, whenever we are producing any product, so what is its production cost, designing cost, what is the depreciation, what is its life cycle cost. So all the costs are bifurcated into different engineering cost. Okay, so we will see one by one. So our first point is what is fixed cost. So fixed cost means what? That cost, that price doesn't change. Yes, so that is fixed cost. Here one example is given to you. So here the floor space or equipment, so these are the considered as a fixed cost. Means whenever we are establishing one organization, so at that time what are the expenses regarding floor space, what are the expenses regarding purchasing those equipments. So it is a one time expense, so that is considered as a fixed cost. Yes, now second one is variable cost. Yes, so variable cost means what? It varies, depends on a particular activity, so that is variable cost. Variable cost means it may changes over time, it is not fixed, it is not constant, so that is variable cost. Yes, so here one example is given to you. Labor costs are variable cost because it depends on the number of employees and the number of hours they work. Yes, so suppose in a one day 5 laborers are required to construct one floor or for making plaster in that floor. In a second day 6 laborers are required for construction for another construction. Yes, so every day different laborers are required, so its cost is changing, so that is variable cost. Third cost is marginal cost, means it is a variable cost for one more unit. Yes, मतलब यहाँ पे जो यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ वेराई. So for one unit its cost is vary from the another unit, that is considered as a marginal cost. Next one is average cost, means what is the total cost of producing a one product. Okay, so that total cost is divided by the number of cost, so at the time we are getting average cost. Yes, so it is a total cost divided by the number of units. मतलब पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उस प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन का एक्सपेंस क्या है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम कैरी करते हैं तो उसका एक्सपेंस क्या है. ठीक है, जब उसमें मटेरियल जो जाता है उसका एक्सपेंस क्या है. ठीक है, सेल करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसका एक्सपेंस क्या है. सो all the expenses are combined together, then we are getting total cost, and this total cost is divided by the number of units. मतलब जो भी है, purchasing unit है, sell unit है, production unit है, designing unit है, so divided by the number of units and then we are getting average cost. Okay, next one is a sunk cost. Sunk cost means what? Whenever we are purchasing one laptop before 5 years and then what is the current value of that laptop, so that is a sunk cost.
means money is already spent as a result of past decision. We are taking a one decision before 5 years. I purchased that laptop. Okay, so at that time its cost is approximately its cost is 50,000 rupees. Now if in today's price its cost is only 15,000 rupees, so that is considered as a sunk cost. Okay, next one is opportunity cost. So opportunity cost means what? I have so many opportunity, so whenever I want to achieve one opportunity, so during that time I am losing another opportunity. Yes, so that is and for that whatever the expenses are occurred, so that is opportunity cost. Here one figure is given to you. For example, here first figure shows one student is studying tonight for the final exam. Okay, so whole night he studied for final exam, but in the next day he is feeling sleepy. So at that time he is feeling sleepy, so at that time he is lost the opportunity, and his next opportunity is to sleep the whole day. Okay, so your opportunity cost is a good night's sleep. So what is your main opportunity? So if you sleep very well, so then in the next day you will get better result, so that is opportunity cost. Okay, so यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. So here there is one student and he want to go in a summer camp. So for summer camp he has to spend $3,000, and on the other hand he has an opportunity to earn money during summer vacation, but in a summer vacation he want to go to the summer camp. So here he lost his opportunity, and here 3,000 rupees is a cash cost and 5,000 rupees is a opportunity cost. Means here in a vacation he has a chance to earn 5,000 rupees. Yes, so here its total cost is 3,000 plus 5,000, means he has lost rupees 8,000. Yes, next is recurring and non-recurring cost. So first is recurring cost, so that cost is recurred at a regular interval, so that is recurring cost. Okay, for example if we are opening one recurring in a bank, so in a after completion of 1 month, okay, we have to pay some fixed amount, so that is recurring cost. Second one is non-recurring cost. So some expenses which occur unexpectedly, so they are considered as a non-recurring cost. Next one is incremental cost. So incremental cost means what? So here that cost is increased day by day, so that is incremental cost. So here one excellent example is given to you. So here we are purchasing 2 cars. Okay, so difference between these 2 cars and its maintenance, okay, so that difference is considered as an incremental cost. So here one example is given to you. So here we have 2 models of car, model A and model B. So its purchase price for model A is $10,000 and for B that is $17,500.
installation cost is 3500 rupees, and for B that is 5000 rupees. Annual maintenance cost is 2500, and for B that is 750. Annual utility expenses that is 1200 for A and 2000 for B. And disposal cost after usual life that is 700 for model A and 500 for model B. So here we have to find out the difference between these two models. So that difference is considered as an incremental cost. That difference shows in a second table in a solution part. So see last column, incremental cost of B. Yes, so here we have to deduct from B to A and we are getting the difference. So that is considered as a incremental cost, that is $7,500, $1,500 minus 1,750 per year, 800 rupees per year, and minus 200. So whatever the difference we are getting in a minus minus sign, so that difference is deducted from the other expenses and final amount. So all the differences are sum up and we are getting incremental cost of particular model. Okay, next one is cash cost. So cash cost means what? So whatever the transactions we have made in a particular company, okay, that transaction is based on assets. Particular asset means what? हमने कुछ चीज़ खरीदी है, so that is considered as a asset in a accounting term. Yes, so it is considered as a cash cost. हमने कोई चीज़ है वो परचेज की है, कैश दे के हमने कोई चीज़ परचेज की है, so that उस चीज़ को बोलेंगे asset. So that is considered as a cash cost. नेक्स्ट वन इज बुक कॉस्ट. बुक कॉस्ट मतलब क्या? कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है तो उस पर डेप्रिशिएशन लगता है. मतलब वो चीज़ है तो आफ्टर 1 ईयर दैट पर्टिकुलर एसेट अमाउंट इज डिक्रीज्ड 1 by 1 year. ओके, सो यहाँ पे डेप्रिशिएशन लगता है. सो दैट डेप्रिशिएशन दैट इज रिटन इन अ पर्टिकुलर accounting format. So that is considered as a book cost. Next one is life cycle cost. So life cycle cost means what? Throughout the whole life, whatever the costs are applied on particular product or whatever the expenses are occurred on that product, that is considered as a life cycle cost. For example, designing, production, operational and retirement. So during these phases, whatever the expenses are imposed on that particular product, that is considered as a life cycle cost. Okay, so here cost estimating, next point is, so in a cost estimating here there are 3 types of estimates. मतलब पर्टिकुलर कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो उस कॉस्ट को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, so 3 types of estimates are we will see. First one is rough estimate, second one is semi detailed estimate and third one is detailed estimate. Yes, तो फर्स्ट पॉइंट इज रफ एस्टिमेट. तो उसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि सपोज़ मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा है वो मुझे व्यू कर रहा है, मतलब रिव्यू दे रहा है कि ये प्रोडक्ट है अप्रोक्सीमेटली इतने की होनी चाहिए. ऐसे ही उसको पता नहीं है कि प्रोडक्ट कितने की है, अभी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उसने रफली मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट है, सपोज़ लैपटॉप है तो ये इतने का होना चाहिए. So that is rough estimate. तो rough estimate accuracy lies between 30 to 60%. मतलब उसका आधा, मतलब 70% जजमेंट उसका गलत रहता है. That is rough estimate. Second है semi detailed estimate. मतलब अप्रोक्सीमेटली उसको पता है कि मार्केट में अभी जो लैपटॉप्स हैं,
ठीक है, अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप्स है, तो उसको वो नहीं पता पर्टिकुलर इस ब्रांड का लैपटॉप है वो कितने का है, बट उसको पता है कि जनरली 25 to 30,000 के आसपास लैपटॉप मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जजमेंट लगाता है दैट इज सेमी डिटेल्ड एस्टिमेट। थर्ड वन इज डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो सपोज पर्टिकुलर मैं बोलती हूँ कि ये डेल का लैपटॉप है, ये कितने का होना चाहिए, और उसको पता है, सामने वाले बंदे को पता है कि हाँ डेल का लैपटॉप इतने से स्टार्टिंग तो होता ही है, इतने का तो होता ही है, ठीक है। तो जो उसका जो जजमेंट है, ठीक है, तो जजमेंट की एक्यूरेसी है, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट है। तो वो 3 to 5% उसका थोड़ा वेरिएशन रहता है, 95% उसका जजमेंट है या 97% उसका जजमेंट है वो एक्यूरेट है, ठीक है, परफेक्ट है। सो दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेट। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेटिंग मॉडल्स, ठीक है। जो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने की होनी चाहिए। तो फॉर दैट हियर इन इकोनॉमिक्स different estimating models are designed, okay। So based on those models we can easily estimate what is the price of particular product after 10 years, what will be the price of this product. Yes, so for that we are designing different models. There are 6 models. First one is per unit model, second is segmenting model, third one is cost index, fourth one is power sizing model, fifth one is triangulation model, sixth one is improvement and learning curve, ठीक है। Here triangulation model is not necessary. Now we will see one by one. First one is per unit model, okay। So whenever यहाँ पे ये सिंपल है, एकदम सिंपल मॉडल है, मतलब पर यूनिट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो सकती है, दैट इज़ पर यूनिट मॉडल। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ ₹65 पर स्क्वायर मीटर, ओके। सपोज़ कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज़ हम टाइल्स, फ्लोर पे टाइल्स है वो स्टिक करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे पर स्क्वायर मीटर पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। सो दैट इज़ पर यूनिट प्राइस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया है कि सर्विस कॉस्ट पर कस्टमर, ठीक है। हर एक कस्टमर को जब भी कोई भी कंपनी है वो ट्रीट करती है या सर्विस देती है तो उसकी पर कस्टमर उसकी प्राइस क्या है। गैसोलीन कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है, तो पर किलोमीटर गैसोलीन की कॉस्ट क्या है। सो ऑल द एग्जांपल्स आर कंसिडर्ड एज पर यूनिट मॉडल। सेकंड है सेगमेंटिंग मॉडल, मतलब होल प्रोडक्ट को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसकी प्राइस क्या है तो वो हम जो जज लगाते हैं दैट इज सेगमेंटिंग मॉडल, ठीक है। सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिवाइड एंड कंकर, ठीक है। प्रोडक्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और फिर हम कंकर मतलब उसको फिर से हम पूरी एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज सेगमेंटिंग मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने कोई ट्रक परचेज़ की है तो ट्रक के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, तो जो अलग अलग पार्ट्स है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए सेगमेंट। तो हर एक अलग अलग पार्ट्स की उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, और उस प्राइस को हम सारी प्राइस मतलब सारे पार्ट्स की प्राइस को कंबाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस ट्रक की टोटल प्राइस क्या है, ठीक है, ठीक है। तो जो सारे प्राइस मतलब जो पार्ट्स है जो अलग अलग है उसकी प्राइस जो हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज सेगमेंटिंग मॉडल। नेक्स्ट है कॉस्ट इंडेक्स। सो कॉस्ट इंडेक्स मतलब क्या, सो इट कैन बी यूज टू अकाउंट फॉर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द कॉस्ट। द वाइडली रिपोर्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है कि जब भी हम यहाँ पे मार्केट बास्केट एनालिसिस का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि जब भी हम ग्रोसरी परचेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है,
तो हम ग्रोसरी परचेज करते हैं तो तब जब हम मिल्क लेते हैं तो उसके साथ हम बटर मिल्क लेते हैं, ठीक है। शूज़ लेते हैं तो शूज़ के साथ हम सॉक्स लेते हैं जनरली, ठीक है। फिर हम चीज़ लेते हैं तो चीज़ के साथ हम बटर लेते हैं, ठीक है। टी चाय पत्ती लेते हैं तो उसके साथ शुगर भी हम लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ कि उसके साथ हम दूसरी चीज़ लेते ही है कंबाइंड में। सो दैट इज़ मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो बेस्ड ऑन मार्केट बास्केट एनालिसिस कंज्यूमर एवरेज प्राइस इज एज्यूम्ड, दैट प्राइस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। So this price index is varied from one to another month, ठीक है। तो वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि सपोज ए इज़ अ टाइम पॉइंट इन द पास्ट एंड बी इज़ अ करंट टाइम। मतलब ए को पास्ट टाइम बोला है, बी को करंट टाइम बोला है। लेट for A denote the index value at a time A and for B denote the current index value for the cost estimate of interest. Yes, so to estimate the current cost based on the cost of time A, use this equation, ठीक है। so cost of B divided by cost of A, ठीक है, उसको डिनोटेड भी किया है, ठीक है, B डिवाइडेड बाय A। अब B की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब करंट टाइम की कॉस्ट, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे डिवाइड किया है, मतलब सामने जो डिवीजन में जो कॉस्ट ऑफ A है उसको हम सामने ले गए, ठीक है। तो हमें कॉस्ट ऑफ B है वो मिलेगी। सो दैट इज़ कॉस्ट इंडेक्स। यहाँ पे एक सिंपल दूसरा एक एग्जांपल दिया है कि मीडियम इज़ इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द एनुअल लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी। शी वॉज एबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट डेटा। यस, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, मतलब लेबर है तो उसकी क्या कॉस्ट है और मटेरियल कॉस्ट है तो उसकी क्या कॉस्ट है। अब लेबर कॉस्ट है तो 10 ईयर्स बिफोर उसकी क्या कॉस्ट है, टुडे मतलब करंट टाइम में उसकी लेबर कॉस्ट अभी क्या है, ठीक है। एनुअल लेबर कॉस्ट है, ठीक है, तो एनुअल लेबर कॉस्ट है वो 10 ईयर्स अगो, ठीक है, क्या थी, तो वो भी हमें दी है। दूसरा है मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, वो 3 ईयर्स अगो कितनी थी, अभी कितनी है, और 3 ईयर्स बिफोर उसकी एनुअल कॉस्ट क्या थी वो भी हमें दी है, ठीक है। तो इतनी कॉस्ट हमें दी है, अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल लेबर कॉस्ट है, ठीक है, तो एनुअल लेबर कॉस्ट हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एनुअल कॉस्ट टुडे डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट 10 ईयर्स अगो विच इज़ इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू टुडे डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू 10 ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एनुअल लेबर कॉस्ट हम फाइंड आउट करें। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें मेमोराइज करनी है। एनुअल कॉस्ट टुडे डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट 10 ईयर्स अगो, इंडेक्स वैल्यू टुडे डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू 10 ईयर्स अगो। अब हम क्या करेंगे, एनुअल कॉस्ट टुडे है वो फाइंड आउट करना है। तो जो उसके डिवीजन में है एनुअल कॉस्ट 10 ईयर्स अगो उसको हम सामने ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल की साइन है उसके राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे डिवीजन में तो सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ दी है कि कॉस्ट एनुअल कॉस्ट 10 ईयर्स अगो कितनी है, तो वो इतनी है 5,75,500 रुपीज़, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू टुडे कितनी है, तो 188। इंडेक्स वैल्यू 10 ईयर्स अगो कितनी है, तो 124। ये सब कहाँ से आया, तो यहाँ पे आगे दिया था, ठीक है, तो वो हमने लिया है। तो हमें फाइनली मिलता है 8,71,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारी एनुअल कॉस्ट है टुडे की आ गई। अब इसी तरह से हम एनुअल मटेरियल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। सेम फॉर्मूला जो ऊपर अप्लाई की थी एनुअल लेबर कॉस्ट में, वही फॉर्मूला हमें मटेरियल कॉस्ट में भी अप्लाई करनी है, ठीक है, और हमें वैल्यू रखनी है। तो हमें एनुअल कॉस्ट है वो आज की एनुअल कॉस्ट है वो हमें मिल जाएगी, ओके। फोर्थ मॉडल है पावर साइजिंग मॉडल।
अब देखो नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट का यूज़ हुआ होगा, ठीक है, पावर का यूज़ हुआ होगा. सो इट अकाउंट्स द एक्सप्लिसिटली फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें याद रखनी है. क्या है? तो वो देखो ब्लू फॉन्ट से मैंने हाईलाइट की है कि कॉस्ट ऑफ बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए इन अ ब्रैकेट साइज ऑफ डी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए, और ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद ऊपर लिखा है एक्स. एक्स का मतलब क्या? वो एक्सपोनेंट है. यस, वो एक्सपोनेंट दिया है तो वो हमें लिखना है. अब यहाँ पे ये हमारी फॉर्मूला है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. तो क्या है एग्जाम्पल? सो बेस्ड ऑन हर वर्क इन एग्जाम्पल, सो मीडियम हैज़ आस्क्ड टू एस्टिमेट टुडेज कॉस्ट 2500 feet square heat exchange system for the new plant being analyzed. She has the following data. So her company paid 50,000 rupees for 1000 square feet heat exchanger 5 years ago. Heat exchanger within this range of capacity has a power sizing exponent of 0.55. मतलब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू है 0.55. 5 years ago, heat exchanger cost was 1306. It is 1487 today. ठीक है. अब 5 साल पहले हीट एक्सचेंजर की कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू 1306 थी, करंट की है 1487. ठीक है. अब हमें क्या करना है? हमारे पास फॉर्मूला रेडी है. ठीक है. फॉर्मूला क्या है कि कॉस्ट ऑफ 2500 feet square, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1000 feet square इन ब्रैकेट साइज ऑफ 2500 feet square डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 10,000 feet square एंड उसका एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट की वैल्यू हमें दी है 0.55. सारी वैल्यू हमारे पास है. ठीक है. तो वो हम वैल्यूज़ है वो 1 by 1 हम क्या करेंगे उसमें रखेंगे. ठीक है. तो क्या करना है हमें? 50,000 इन ब्रैकेट 2500 डिवाइडेड बाय 1000, एक्सपोनेंट में लिखना है 0.55. ठीक है. तो जब हम इसमें उस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 82,800. वो क्या मिला? कॉस्ट ऑफ 2500 फीट स्क्वायर की, मतलब जो इक्विपमेंट है तो उसकी कॉस्ट हमें मिली. ठीक है. अब क्या करना है? तो हमें एनुअल कॉस्ट है, आज की एनुअल कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो प्रीवियस में हमने जो फॉर्मूला अप्लाई की थी वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है. ठीक है. तो अब फॉर्मूला क्या है? इक्विपमेंट कॉस्ट टुडे डिवाइडेड बाय इक्विपमेंट कॉस्ट 5 years ago. इंडेक्स वैल्यू है वो आज की क्या है, और डिवीजन में पास्ट की क्या है वो हमें रखनी है. ठीक है. तो हमें आज की एनुअल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे जो एनुअल कॉस्ट 5 years ago तो वो है 82,800 रुपीज़, वो हमने सामने लाके हमने रख दिया. तो वो है 82,800 इनटू इंडेक्स वैल्यू टुडे क्या है 1487, और इंडेक्स वैल्यू 5 years ago उसकी क्या थी? तो 1306. तो हमें एनुअल कॉस्ट है वो आज की 94,300 रुपीज़ मिली. ठीक है. डॉलर में भी बोल सकते हो, रुपीज़ में भी बोल सकते हो, दैट इज़ नॉट इश्यू. ठीक है. तो हमें क्या मिला? 94,300 रुपीज़ है वो एनुअल कॉस्ट आज की हमें मिली. ठीक है. अब यहाँ पे सेम वे ऐसे ही दूसरा एक प्रॉब्लम दिया है. ठीक है. जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल 2 सॉल्व किए उसी तरह से है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग कर्व. ठीक है. इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग कर्व मतलब क्या कि इसका यूज़ क्या है? तो जो हम एस्टिमेट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हम एस्टिमेट करते हैं. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, बट जब उसमें हमें ग्रिप आ जाती है, मतलब पता चलता है कि नहीं, जब हमारा परफॉर्मेंस है, कोई भी पर्टिकुलर वो चीज़ है हम बार बार ख़रीदते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड होता है. ठीक है. और फिर हमें पता चलता है, मतलब वो रिपीटेशन बार बार जब होता है तो हमें एक्यूरेसी आ जाती है. ठीक है. तो जो एक्यूरेसी जब आती है, ठीक है, तो उस टाइम पे
कौन सा मॉडल यूज़ होता है, तो इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग कर्व है वो यूज़ होता है उसमें। यस, तो क्या है, सो लर्निंग कर्व कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टास्क परफॉर्मेंस एंड टास्क रिपीटेशन। यस, सो इट कैप्चर्स what task we have to perform on particular product or in our organization, and that task is repeatedly consequently. Yes, so that is improvement and learning curve. अब क्या है, next point is in general output doubles the unit production time will be reduced to some fixed percentage, the learning curve percentage or learning curve rate. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है तो हमें आउटपुट भी डबल मिलेगा, मतलब एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जाती है तो हमें आउटपुट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो एक्चुअली ये सिंपल एक एग्जांपल है, उस ये ज़्यादा बेटर रहेगा ये एग्जांपल। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज फॉर द टाइम एस्टिमेटिंग इन रिपीटेटिव टास्क। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला दी है कि टी एन इक्वल टू टी इनिशियल इंटू एन रेज टू बी। सो टी एन का मतलब क्या है, टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द nth यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। टी इनिशियल मतलब टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एन मीन्स नंबर ऑफ completed units, and B means learning curve exponent. So here bracket slope of learning curve on log means log plot. Yes, so here one by one variable is explained, and for finding B, so what is the formula of B exponent? So log learning curve expressed as a decimal divided by log 2.0. यस, सो यहाँ पे b है तो b की फॉर्मूला यहाँ पे फिक्स की है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, तो लॉग और लर्निंग कर्व एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, तो डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो log 10 डिवाइडेड बाय log 2.0। ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी b की। यस, ये सिंपल आपको दिखाया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स है, वी आर टेकिंग नंबर ऑफ यूनिट्स horizontally and time is considered as a vertically, and steady state हमें मिलता है from up to down, whenever we come to the down in a graph then we are getting a steady state, means we are getting more accuracy on that particular product. Yes, so steady state is a time at which the physical constraints of performing the task prevents the achievements of any more learning or improvements. So here one example is given to you. Calculate the time to required to produce the 100th unit of production run if first unit took 32 minutes to produce and the learning curve rate of production is 80%. Yes, so here जो 100 units बोला है, so that is Tn, so T 100 लिखा है, T1 मतलब क्या है, यहाँ पे 32 मिनट्स जो ले रहे हैं वो, तो 32 इंटू 100 और ऊपर जो है log 0.80 डिवाइडेड बाय log 2। यस, तो यहाँ पे log 80 डिवाइडेड बाय log 2 है तो वो b की वैल्यू है। तो जब हम log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में कि log 0.80 डिवाइडेड बाय log 2.0, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्व है वो 80% वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंट में log 0.80 लिया है। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलेगी -0.3219। ठीक है, और उसको भी हम डिडक्ट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 7.27 मिनट्स है वो हमें मिलेंगी, मतलब उतना टाइम लगता है 100 यूनिट को प्रोडक्शन जब होता है तो उस टाइम पे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसको ज़्यादा एलाब्रेट किया है। तो क्या है, इफ़ 200 लेबर आवर्स were required to produce first unit in a production run and 60 labor hours are required to produce 7th unit, what was the learning curve rate during production? Yes, तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल एक एग्जांपल दिया है कि 200 लेबर आवर्स है, फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन जब होता है तो 200 लेबर आवर्स चाहिए, एंड 6 लेबर आवर्स कब चाहिए, जब 7th यूनिट का प्रोडक्शन होता है तब।
सो व्हाट वाज द लर्निंग कर्व रेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो हमें लर्निंग कर्व का जो रेट है या परसेंटेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है कि Tn इज इक्वल टू टी इनिशियल इंटू n रेज टू बी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखते हैं। सो Tn मतलब T7, तो T7 इक्वल टू T1 इंटू 7 रेज टू बी। सो T7 की वैल्यू मतलब T7 मतलब उसमें कितना टाइम लगता है 7th यूनिट में, तो 60 आवर्स लगते हैं, तो वो हमने रखे। फर्स्ट यूनिट में मतलब T1 मतलब जो फर्स्ट यूनिट है तो उसमें कितना टाइम लगता है, तो 200 आवर्स लगते हैं, तो वो हमने लिखे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लास्ट यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा बनेगा Tn, मतलब पहले हमने फर्स्ट यूनिट की बात की, फिर हमने बात की 7th यूनिट की, तो 7th यूनिट इज़ कंसिडर्ड एज अ Tn, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे T7 की वैल्यू क्या है, तो 60 आवर्स लगते हैं 7th यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, तो 60 इंटू 200 इंटू, तो यहाँ पे n मतलब Tn, n मतलब 7, तो 7 रेज टू बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सामने वैल्यू लाएंगे, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 रेज टू 3 है, तो यहाँ पे 0.3 मतलब क्या है, log 0.30 b है, उसको हम आगे लाते हैं, ठीक है। तो b इंटू log 7, ठीक है, b को अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। तो log 0.30 डिवाइडेड बाय log 7, तो हमें आंसर मिलेगा -0.62, ठीक है। तो वो वैल्यू आई बी की, ठीक है। सो बी इज़ डिफाइंड, देखो अब ब्लू लाइन में लिखा है कि बी को हमें कंसिडर करना है एज ए लॉग लर्निंग कर्व रेट डिवाइडेड बाय log 2.0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू है वो आई -0.60, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लर्निंग कर्व रेट है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लर्निंग कर्व रेट फाइंड आउट करने के बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लर्निंग कर्व रेट को वहाँ पे ही रहने देंगे और सामने है वो वैल्यूज़ हम रख देंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू पता है कि हमने आगे देखा कि बी की फॉर्मूला हमें दी थी कि जो बी के है वो एज अ लॉग और डेसिमल के एक्सप्रेशन में लेना है, और डिवीज़न में आएगा log 2.0, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे ये वैल्यूज़ है वो अप्लाई करनी है, तो हमें यहाँ पे हमारा बेस रहेगा 10, ठीक है। और जो वैल्यू है 0.60 डिवाइडेड बाई log 2.0 करेंगे तो हमें मिलेगा -0.187, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, तो 10 रेज टू -0.187, ठीक है। तो हमें मिलेगा 0.65, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर दो तो हमें मिलेगा 65%। तो यहाँ पे हमारा लर्निंग कर्व रेट हुआ 65%। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।